Today I have taken this special class before commencing any practice test that there are certain strategies which we use to solve any MCQs. And when we talk about the word MCQs, they are not going to stop with your 12th standard. When you are going to give your exams, that is your entrance exams, are all are OMR based exams. Even after 12th standard, after grads, you may be going for some courses like आप कैट करना चाहते हो, मैट करना चाहते हो, या इन द लेटर स्टेजेस यू जहां आपका सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है वहां पर आपका एमसीक्यूज आर गोइंग टू कम आउट. दैट इज एमसीक्यूज जो है दे आर now part of your curriculum still you are going to come out. Most of the competent जो based exams होते हैं they are all MCQs, right? So is there any strategy? See, basically no strategy will work out until you don't work out. अगर आप काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा. But yes, there are some strategies, there are some 5 tips and tricks that you can definitely take down, and I'm going to share. I had just made a PPT for you, and I had also shared a newspaper clipping with you that is from Times of India. It was there in Times of India. So I'm going to, and today I prepared a PPT. I also shared with my colleagues on other groups and all. So I'm going to share that same thing with you. I'm going to explain you. If you are able to understand each of them, if you are going through those things very nicely, definitely ये जो आपका एक वो जो लाइन खींचा हुआ ना 32 को क्रॉस करके मैं 33 पे नहीं आ रहा हूं, वो नहीं होना चाहिए. You should aim कि मेरा MCQs में I should get 40 on 40, means whatever your marks are, you should get 100%, 100% आपका होना चाहिए. And it is not very difficult to solve MCQs. The very first thing what we have in our mind is that MCQs are very easy. That's the first thing that comes into our mind. MCQs are so easy. उसमें करना क्या है, हमें तो सिर्फ टिक मार्क करना है. That's a very wrong perceptions we make. Then sometimes what happens, if I am giving you the MCQs, I don't know about the other teachers, but if I am giving you some, तो ये होता है, oh my god, today teacher has given us MCQ, so that means we are having lots of time to play today, or it's okay, MCQs ही तो है, ये तो हो जाएंगे. That is where we are wrong. The very first thing that we need to say is MCQs का मतलब ही होता है most confusing questions. You cannot say that MCQs are only multiple choice questions. Multiple choice ही तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है. अगर आपके सामने रख दिया जाए, say you are having the choice, you like to eat joint food, you like to eat fast food, और आपको सभी पसंद है, and if there is a plethora of all the items that you like, आपको बर्गर भी पसंद है, आपको चाउमीन भी पसंद है, आपको उसका नाम क्या है, फ्रेंच फ्राइज भी पसंद है, फिर आप किसको खाओगे? नाउ डोंट से मैम हम तो हर चीज को थोड़ा थोड़ा खाएंगे, अगर आपको एक चीज उठानी है तो. दैट इज मल्टीपल चॉइस, दैट्स द डायलेमा, दैट इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस. सो वी कैन नॉट से दैट यस वी हैव द चॉइस, तो हम तो हमारी मर्जी, हम तो जो मर्जी खा लेंगे. टाइम देखना पड़ता है, भूख देखनी पड़ती है, उसी तरीके से कंसेप्ट देखने पड़ते हैं. वी नीड टू लुक इनटू द कंसेप्ट, वी नीड टू लुक इनटू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर हैविंग, and we have 5 basic strategies to ace MCQs.
सबसे पहले आपका जो MCQs है दे माइट बी ऑफ 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस. आपको उसमें से लाइक इन दी 60 क्वेश्चन पेपर यू हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस. तो आपको जो है ये 60 क्वेश्चंस का यू आर गिवन 90 मिनट्स. You can divide this 90 minutes into 3 parts. And now I'm not saying divide the 90 minutes into 30, 30, 30. I'm saying divide it into 3 parts. Means 15 minutes, first 15 minutes and 75 minutes. आप इसको ऐसा पार्ट बनाइए. 15 minutes का पहला पार्ट, 25 minutes का सेकेंड पार्ट and then 50 minutes का third part. As I have written in the slide, it is always said from move from easy to moderate to difficult. तो 15, 25 and आप अगर 50 का अगर आप रखते हो तो the first 15 minutes you should read the questions, and this is irrespective of the subjects I'm taking. But my particularly I'm talking about BST. तो when you are learning, when you are reading the 15 minutes में, और 15 minutes means आप अपना, जैसे कि मैंने आपको टेस्ट दिया है और आप अपना लिखिए कि मैम has given us the test of 3 o'clock and I have to submit it at 4:30. तो it means आपको वो 1.5 घंटे को जो है you have to divide it. Okay, 15 minutes, 3 to 3:15 I am going to read the questions. Now when you are reading, definitely you will be finding some questions which will be direct, जिसका आपको रटा हुआ आंसर होगा. Like if you are asked what are the functions, so functions लगाते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए. functions का मतलब हो जाता है planning, organizing, staffing, directing, controlling. These are the functions. कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जिसके अंदर आपका आ गया तो उसके अंदर अगर एसेंस आ गया कोऑर्डिनेशन. प्रोसेस, प्लानिंग में प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग में प्रोसेस है, कंट्रोलिंग में प्रोसेस है. बट राइट नाउ इन द फर्स्ट टर्म वी हैव प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. फटाफट देखो प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स फेयर्स एंड 4 यहां पर आपके जो है टेलर. साइंटिफिक लिखा है, टेलर का प्रिंसिपल लर्न कर लो. एंड अगर लिखा हुआ है दैट टेक्निक है तो टेक्निक इज डिफरेंट एंड प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट. प्रिंसिपल्स मीन्स एक बेस. व्हाट इज माई प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, व्हाट इज माई प्रिंसिपल ऑफ डूइंग सम वर्क. एंड टेक्निक इज मैं उसे किस मेथड से करती हूं. दैट्स टेक्निक एंड दैट इज applicable to scientific management. Whereas Fayol's के जितने भी principles हैं, 14 principles, they have been experimented on the administrative basis. दिमाग में 3 चीजें लेके रखो. घर में आपके जो भी सबसे बड़ा है, घर में कोई ना कोई तो बड़ा होगा ही होगा. Like आपके पापा, आपके दादा, someone who is taking all the decisions, जिनके कहने के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट. उनसे नेक्स्ट मिडिल जो काम करवाता है, जो हु इज अ ब्रिज बिटवीन द टॉप लेवल एंड द जिनसे काम हो रहा है, एंड जो डायरेक्टली हु इज गिविंग द इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स, टू द एग्जीक्यूटिव्स, सुपरवाइजरी, जो काम को देख रहा है, हु इज सीइंग दैट whether the work is done or not, whether the materials are there or not, whether the manpower is not there or not, ये सारे देख रहा है वो सुपरवाइजरी लेवल. मेक दैट नीम मतलब कि अपने दिमाग में बना लो. कोरिलेट. नाउ यू हैव डिवाइडेड 15 मिनट्स में आपको मैक्सिमम इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें आपको सिर्फ लेवल्स लिखना हो, आपको फंक्शंस लिखना हो, आपके या कंसेप्ट लिखना हो. यू कैन मार्क इट. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट 25. अब
सॉल्व द इजी वन जिस पर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, and then move to the rest of the things which you feel according to you is difficult. Don't rush, neither here neither there. क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, क्वेश्चन को. When we used to do the subjective one, when we used to do the source based question last year, and I used to tell you that don't read the passage, first read the question. That the same principle will go here also. Read the question. उनमें कुछ words होते हैं, which, what, always, never. That will exactly make you understand. और आपने पढ़ा, उसके बाद आपको लगा कि पहला ऑप्शन आपके सामने और आपको लगा वाओ यस यही तो इसका आंसर है, चलो फटाफट ऑप्शन लगा दो, गोला लगा दो. वहां पर देखा ये दिस इज दिस और आपने फटाफट लिखा ये फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है लगा दिया. डोंट डू दैट. बिफोर मूविंग टू द आंसर पार्ट, रीड द अदर ऑप्शंस ऑल्सो जो बचे हुए हैं. मे बी योर आंसर इज ऑल द अबाउ. That would reduce the chances of mistakes. That would reduce the chances of mistake. Third, the third strategy, use clues. Now, what is the meaning of that? Use clues. We have maths. There are subjects जहां आपके equations होते हैं, units होते हैं, dimensions होते हैं. BST के अंदर आपके कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक फंक्शंस, कॉन्सेप्ट, देन फीचर, limitations. These are the cues. We call it as cues and clues both. Think for those words. कभी कभी ग्रामर नच होते हैं आपके थियोरेटिकल सेंटेंसेस में, स्पेसिफिकली इन इंग्लिश बिजनेस स्टडीज. यू हैव grammatically you may be given something which might be wrong. That will give you a vital clue. जैसे यूनिट्स हैं, अगर आपका क्वेश्चन स्क्वायर्स में है, ऊपर कुछ और दिया है, यू कैन इमीडिएटली टेक दैट. आप उस चीज को ध्यान कर सकते हो. नेक्स्ट इज, ये आपका साइकोलॉजिकल बेस्ड है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी. मतलब ये हम लोग घर में भी करते हैं. आई मे कॉल माई किसी का भी फोन नंबर होता है जिसे मुझे याद करना हो ना, तो आई वुड बी डेफिनेटली को रिलेटिंग इट टू समथिंग, उससे रिलेट करके. ये काम मैंने कब किया था, ये काम मैंने किसके साथ किया था. और अभी भी not proud, but sometimes it is negative also, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में हमेशा याद रहती हैं. But yes, while performing the MCQs or such questions, these helps. I still remember what was said by someone and where it was said, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत important था. And this is context based memory. जैसे आपने कोई क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है या आपको बहुत बुरा लगता है, both can be there. Your economics teacher taught you, your BST teacher, school teacher taught you, I taught you, and you remember मैम ने ये चीज हमें बताई थी. And for this I'm really very happy. Many of my students come back to me and they say, मैम आपने वो चीज वहां पे बताई थी ना, तो I remember.
और किस पेज पे था, ऑन राइट साइड था, ऑन लेफ्ट साइड था. समटाइम्स वी रिमेंबर दोस. तो उसको हमेशा अपने दिमाग में रखिए. लाइक क्वेश्चन आपको याद नहीं है, अब तुक्का कैसे मारोगे? द क्वेश्चन कम्स, तुक्का कैसे मारोगे? यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर, आंसर रिमेंबर नहीं हो रहा, आप तुक्का कैसे मारोगे? ध्यान करिए थोड़ा सा कि इसे मैंने किस बुक में पढ़ा था. जैसे क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, साइकोलॉजिकली इट गोज ऑन चेन ऑफ मोमेंट्स. इट गोज ऑन चेन ऑफ मोमेंट्स. वो अच्छा हो या बुरा हो, इट डजेंट डिफरेंशिएट, बट इट वुड गो ऑन चेन ऑफ मोमेंट्स. सब मैं गई थी तो ये हुआ था, उसके साथ ये हुआ था. सो व्हेन यू फिगर आउट कि ये क्वेश्चन मैंने वहां पढ़ा था, या मैंने अपने दोस्त के साथ पढ़ा था, या जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे मामा जी आ गए थे, you will immediately remember what was there. And this is a proven method. And this is used even for people who छोटी छोटी चीजें रखकर भूल जाते हैं, लाइक अपने कीज. इवन साइकोलॉजिस्ट जब उनको ट्रीट करते हैं तो दे टेक दिस एज वन ऑफ द मेथड टू डील देम. उनको ट्रीट करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है कि हम अपनी चीजों को कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रख लेते हैं. Like I was studying this chapter while I was sitting in the aeroplane. मैं आपको बड़े सारे कहानियां बता सकती हूँ, ये मैंने यहाँ पढ़ा था, ये मैंने वहां पढ़ा था, ये मैंने वहां देखा था. एंड दिस इज हाउ वी कोरिलेट द थिंग्स. वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है क्योंकि उससे पहले और आखिर में जो साथ में होता है, दो थिंग्स आर, इवन दो they may not be that much relative, but that becomes a memory that is embossed in our brain. तो कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल लर्न नहीं हुआ, बिल्कुल याद नहीं है कि क्या था इसका आंसर, तो कॉन्टेक्स्ट को रिलेट करने की कोशिश करिए. दैट्स प्रूवन वन. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. Why? As I said that the next month I'm going to do only practice, practice and practice. Why? Because you'll understand what kind of questions are taken while we are doing a particular chapter. Like, let us come to the question assertion and reason. जो हमें लगता है कि ओ माय गॉड कितने डिफिकल्ट हैं. एंड दो आई टोल्ड यू द वे ऑल्सो दैट टेक दिस assertion as a question. और हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे 6th 7th 8th में, मेरा मतलब है अब आप 12th में हो, तो जब आप छोटे बच्चे थे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था क्योंकि, और आपकी टीचर आपको समझाती थी आंसर लिखने के लिए कि वे वहां क्यों गया था, वे वहां क्यों गया था, क्योंकि उसकी मम्मी वहां खड़ी थी. तो हम उसका आंसर ऐसे लिखते हैं. एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्योंकि एंड इसलिए. इसलिए सो तो पहले यूज होता है. उसकी मम्मी वहां खड़ी थी इसलिए वो वहां गया था. वो वहां क्यों गया था? क्योंकि वहां उसकी मम्मी थी. तो है तो वो वही चीज, बट उससे जब हम लिख रहे हैं तो सो पहले एंड बिकॉज बाद में आता है. तो असर्शन एंड रीजन के अंदर जो है आपको वही चीज लिखनी होती है कि यू हैव टू सी व्हाट इज असर्शन. असर्ट मीन्स टू स्ट्रेस ऑन दैट, ये बिल्कुल ठीक है. तो ये ठीक है तो क्यों ठीक है? क्यों ठीक है? तो दैट इज रीजन. So you have to understand that typology. Like MCQs में क्या questions हैं? Basically in MCQs you will be having the questions of what, when, where. Where is assertion and reason, why, how. ये आपकी typology of questions है. So practice it. Make it sure you make a timetable, a proper timetable.
And this timetable, this 1 month should be written in your, somewhere you are pasting it on your, say, cupboard, on your table, somewhere, कि मुझे इतना इतना जो है आपको इतना टाइम मुझे देना है. Half an hour I have to give daily to each subject. और आपको लगता है कि your BST is weak, give more time. You think your English is weak, give more time. If you think your maths is weak, give more time. But give time to all. किसी भी चीज को ऐसे मत रखना, ये मैं बाद में कर लूंगा. It's okay. Don't do that. There is no बाद में. And if you are practicing it, definitely, if you have practiced 100 questions, so आपको 100 questions solve करने आए हैं. आपको 100 questions याद नहीं हुए हैं. What happens is, many a times students come to me and they say, मैम आपने जो questions करवाए थे ना मैम, उसके बाद मैम आपने जो दिए थे वो तो बहुत difficult थे, but when we did on the मैम, हमने जब किया ना तो मैम वो इतने easy थे. Why? The simple reason is you have solved 100 questions. आपको solve करना आ गया भाई, तो natural है कि जब आपको solve करना आ गया तो 101 question आपको अपने आप ही easy लगा था. अगर वही question आपने बिना practice के किया होता तो आपको वही question difficult लगता. इस साल जब आप लोग MCQs कर लोगे, उसके बाद दोबारा जब आप करोगे तो कहोगे मैम वो तो कितने easy थे. This is why, because it's practice. So when you are practicing daily and you have practiced around say 100 questions in one particular subject, तो natural है कि एक chance ये है आपके उन्हीं 100 में से questions आने हैं. That's 100% sure, proven, guaranteed. इनसे अलग कोई questions आपके पास नहीं आने वाले हैं. Believe me, trust me. And second thing is, when you have done 100 questions and you know how to solve 100 questions, तो 100 तो क्या आप 200 questions भी solve करोगे, क्योंकि अब आपको methodology आती है. And next year maybe probably you may be telling this to somebody else. आप ये बात किसी और को बता रहे होगे, यार ये तो बहुत आसान है. That's now, ये जो मैंने आपको बताए थे, the 5 strategies, those were the tricks to ace any MCQs any time in your life. Now this is the tips, छोटे छोटे tips जो आप हमेशा दिमाग में रख सकते हो. That is a proven long term. This is short term tips. Play KBC. मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ. KBC. KBC में हमारे पास होते हैं 4 ऑप्शंस, मतलब नॉर्मली. एक होता है ऑडियंस पोल, वो आपके लिए नहीं है. फोन अ फ्रेंड, बिल्कुल कभी सोचना भी मत. तीसरा ऑप्शन होता है 50-50. वो ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा. सो अपने दिमाग के कंप्यूटर को बोलिए, कंप्यूटर भाई साहब इसमें से 2 गलत ऑप्शन हटा दो. पढ़ेंगे आप तो आपको समझ आएगा कि यस, देयर आर 2 रॉन्ग ऑप्शंस जो डायरेक्टली आपको दिखेंगे. कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, कुछ और एरर होगा और आपके दिखेंगे. तो वो 2 ऑप्शंस को अपने दिमाग के कंप्यूटर से गायब. अब रह जाएंगे 2. ट्राई फॉर द, तब तक आपके दिमाग में आपकी घंटी बज जाएगी. हम जब ये MCQs बनाते हैं, एक very renowned person, a person who has actually written books, who has researched how to solve MCQs, like उनका मानना है that normally हम जब A, B, C, D options देते हैं, उनका मानना है, रॉक ब्रेक सिसर्स उनकी बुक है, एंड उनका मतलब, और विलियम पाउंडस्टोन, उनका मानना है कि 28% जो है नॉर्मली बी को जाता है
25% सी एंड डी आपका 21 और 20%। और he has proven that normally जब papers बनाया जाता है specifically by CBSE, they use the options which have long tailed keywords, क्योंकि उसके अंदर वो कोशिश करते हैं सारे concepts को डालने की, यानी कि जिसके ऑप्शन थोड़े लॉन्ग होते हैं उनको. So they have the higher probability of being right. You all are math students, you know what is the difference between probability and possibility. तो there is a high probability कि जो लंबे होते हैं उनमें आपके आंसर सारे छुपे हुए होते हैं. That's one another tip. And if you don't have any clue, और कई बार क्वेश्चंस में आपको लगता है तीनों आंसर्स रॉन्ग है, नीचे ऑल द अबव या नन ऑफ द अबव है, you can bet for these options easily, because most of the time CBSE prepares questions in that way कि वो none of the above या all of the above हो या both the above हो, वैसे आपको. Sometimes दो होंगे आपके पास जो बिल्कुल ऑपोजिट होंगे ऑप्शंस, और दो होंगे जो बिल्कुल सिमिलर होंगे. उन पर थोड़ा सा ध्यान करिए. और कहीं आपका, if we go for the right perspective of CBSE जो अभी तक रहा है, very less chances have been there when CBSE had any mistakes in their question paper, leaving one or two incidents. And that's because we all are humans and the question papers are prepared by humans only. At that particular point, normally they don't make mistakes. तो कभी कभी ऐसा ग्रामेटिकली या कुछ ऐसा लगता है जो आपने कभी पढ़ा ना हो, तो दैट विल हेल्प यू आउट. एंड प्लीज stick to NCERT always. Not to any author's book. Not to any author's book. Why I'm saying is, I'm not against any author. I myself is co-authoring many books. Sometimes to explain, an author may take the language bit confusing. Like there are books, but in NCERT we have to, whenever we are making a book, we have to keep NCERT in front of us, and we need to explain that concepts with our examples. Even when we are putting the questions also, तो जो हमारा क्वेश्चन का बेस होता है वो एनसीईआरटी होता है, क्वेश्चंस हम फ्रेम कर लेते. Today I was reading the newspaper and there was a very beautiful advertisement in the very first page. And that was about Ease My Trip, कि वो कैसे start हुआ था, and then it was, stuck in my mind that why should not I make a question out of it, because that was actually relating to business environment. तो मैं क्वेश्चन तो बना रही हूँ ईज माई ट्रिप को देखकर, लेकिन जो मैं कंसेप्ट लूंगी वो तो मेरा एनसीईआरटी का ही होगा. सो बिफोर यू आर प्रोसीडिंग टू योर एग्जाम्स, हैव अ रीडिंग ऑफ ऑल द की आपके जो बने होते हैं, दैट इज फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स, उनको पढ़िए. That particular line will be there in your papers. And one golden rule is that do not spend more than 1 minute on a question. मतलब आपको पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, समझ लीजिए, देन व्हाट विल हैपन इज, आगे जो हमारा एक मेंटल स्टेटस होता है ना, व्हाट डू वी कॉल एज पैनिक,
हम पैनिक मोड क्या कहते हैं? जब हमें अपना सामान नहीं मिलता है तो एकदम से हमारे दिमाग की सारी बत्ती गुल हो जाती है. दैट इज अ पैनिक मोड. सो इफ वी स्पेंड मोर देन 1 मिनट और हमने देखा कि वो क्वेश्चन हमें नहीं आता, तो हमारे दिमाग की सारी बत्ती गुल हो जाएगी कि आगे सारा का सारा जो पेपर है दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, जबकि वो क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे. सो डोंट स्पेंड मोर देन 1 मिनट. और जहां आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए ट्रिकी है, मैंने उसको जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, डिवाइड योर टाइम इनटू 15 25, तो उसको जो लास्ट वाला सेगमेंट है ना उसमें डाल दो. And first attempt all those where you have the confidence, and also do not spend more on the guesswork. And if you are using all these tips and tricks, and plus you can also make certain abbreviations अगर आपको लर्न करना होता है. सुभाष डे में तो दिया भी हुआ है, बट इफ यू वांट टू लर्न द एब्रीविएशंस यू कैन मेक योरसेल्फ. और मैं बताऊं, अपने आप बनाना बहुत अच्छा समझती हूँ. बिकॉज वेन वी आर मेकिंग समथिंग विद आवर ओन हैंड्स, लाइक आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्टिकुलर चैप्टर का लगता नहीं लर्न हो रहा, आप उसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनका बना सकते हो. लाइक हम लोग जब छोटे बचपन में 9 प्लैनेट्स का नाम करते थे, तो हम ऐसे ही लर्न करते थे. आई taught my students in that way. My most elegant mother taught me how to bake, ऐसा कुछ करके. एंड उसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड होता था दैट वाज द नेम ऑफ ऑल द प्लैनेट्स. सो यू कैन मेक दैट, बिकॉज लर्निंग इज डिफिकल्ट, अंडरस्टैंडिंग इज ईजी. आप अपने लिए कुछ शॉर्ट बना सकते हो दैट वुड रिमेन इन योर, जैसे मैंने कहा था, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस. तो आपके कंटेक्स्ट, आपके दिमाग में वो चीज याद रहेगी कि यस मुझे ये चीज को ऐसे करना था. यू कैन, कोई डिफिकल्ट वर्ड है जो आपको लगता है आप कभी याद नहीं करोगे, तो उसके आगे अपने दुश्मन का नाम याद रख लो, आपको हमेशा याद रहेगा. यू कैन यूज दीज एज अ टिप्स, एंड thus if you are practicing using these tricks, practicing daily, and as I said, even if I have solved 100 questions, it is not the first time, second time or third time. Children, it is, जब भी आप करोगे ना आपको ये लगेगा कि मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं. एंड द रीजन इज नॉट दैट कि आपने वो क्वेश्चन किया हुआ है. जब आप 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाते हो तो आपको अंधेरे में तीर चलाना आ जाता है. If you know to solve the 100 questions, then 101st question is going to be just an arrow in the dark. Still आपका बिल्कुल निशाना सही लगेगा क्योंकि आपको वो तरीका आता है. So stick to the methods. आपके घर में कभी लाइट जाती होगी एंड उस वक्त में what happens is आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना. अगर आपने अपने अपने आप को जो है यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग अंधेरे में चलने की, तो आपको कभी भी कहीं पर भी जाके आप टकराओगे नहीं. मेनी टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू क्लोज माय इंस्टीट्यूट, डेफिनेटली लेट हो जाती थी, तो बाहर तो लाइट नहीं होती थी, बट आई न्यू हाउ टू क्लाइंब द स्टेयर्स. इवन आई हैड फ्रैक्चर. दैट इज बिकॉज हमें हैबिट हो जाती है. तो द सेम हैबिट विल बी देयर. The paper is going to be easy because you are going to spend 1 month now for practice. And during this 1 month, you are going to gulp all the concepts, all the methods. हर एक चैप्टर का एक एसेंस है. फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिकली आपको उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, the nature of management, that is as a science, as a profession, as an art, coordination. सेकेंड चैप्टर में क्या है? प्रिंसिपल्स है.
प्रिंसिपल्स में आपके जो है फेयर्स 14 है, तो आपके जो टेलर है उनके 4 प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हैं। देन थर्ड चैप्टर क्या है? इट इज द स्कैनिंग ऑफ द एनवायरमेंट, आपके जो बेसिक 5 एनवायरमेंट है। फोर्थ चैप्टर क्या है? आपका प्लानिंग है। प्लानिंग के अंदर आपको क्या करना है? प्रोसेस याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस हमेशा प्लानिंग से आती है, हमेशा लिमिटेशंस प्लानिंग से ही आती है। ऑर्गेनाइजिंग में आपके स्टेप्स है। देन शेयरिंग ऑफ द वर्क डेलीगेशन, शेयरिंग ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपके कंसेप्ट हैं। एंड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन, साथ मिलकर काम करना, कोऑपरेशन, काम को एक साथ करना, कोऑर्डिनेट करना। In marketing, you are introducing your product into the market. So you get the knowledge of the market. You introduce your product by designing it, by giving it a name, by labeling it, by sending it through some intermediaries, by advertising and keep promoting it, and by keeping touch with your consumers, यानी कि consumer relations. Management, marketing management is marketing management, and under marketing you have the functions: gathering, standardizing, grading, branding, labeling. And ये जो हम functions पढ़ते हैं इनको हम marketing mix के अंदर लेकर आ जाते हैं, which we call as 4 P's. मतलब है वो वही, लेकिन प्लेस के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को ला रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को ला रहे हैं, प्राइस के अंदर कौन कौन सी चीज़ को ला रहे हैं, प्रमोशन के अंदर क्या। सिमिलरली व्हेन यू आर मूविंग टू द कंसेप्ट्स ऑफ, मतलब आपका एसेंस क्या है, आपके बेचने का क्या, व्हाट इज योर मोटिव? यू वांट टू अर्न मनी, मतलब अर्न मनी तो हर एक का है, लेकिन किस तरीके से आप अर्न करना चाहते हो इज योर व्हाट वी कॉल एज फिलॉसफी। किस तरीके से, जिंदगी का फिलॉसफी क्या है, आप किस तरीके से जीना चाहते हो। I want to enjoy, I want to go to mountains, I want to go abroad, I want to earn money. या earn money तो सब कुछ है, लेकिन उसे कैसे खर्चा करना चाहते हो। सिमिलरली आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में क्यों उतारना चाहते हो? एवरीबडी नोज फॉर मनी, बट उस मनी को कैसे बनाओगे? बाय सैटिस्फाइंग पीपल्स नीड, मार्केटिंग। बाय सैटिस्फाइंग देयर सोशल नीड्स, सोशल एंड मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग। by only earning money by making more and more, मतलब by aggressive selling product। तो वो जो words है, selling, satisfying need, then society's need, जो society है तो social, satisfying need है तो marketing, aggressive selling है तो selling। by designing तो product, design किसको करोगे? product को ही तो करोगे। by more manufacturing तो manufacturing मतलब production, उसका सिनोनिमस प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट। तो ये बस रटना है, एंड देन यू विल बी एसिंग। दिस MCQs were first developed at St. Edward School in England, and right now we are using all over the world, right?